जर्मनी क्यों आया जाए और उसकी क्या वजूहात हैं, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जर्मनी आया कैसे जाए, ये है आज का हमारा टॉपिक। जर्मनी आने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसमें सबसे पहला स्टेप है चूज़ योर यूनिवर्सिटी। नाउ व्हाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी, कहाँ से चूज़ की जाए, कौन सी वेबसाइट, उसके लिए वेबसाइट है dat.de। dat.de पे मोर देन 17,000 प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें बहुत से कोर्सेज इंग्लिश में भी होते हैं। वहाँ पर जाकर आप इजीली अपनी यूनिवर्सिटी और जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी मेंशन होती हैं, तो अगर आपकी फर्दर क्वेरीज हों तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी ग्रैब कर सकते हैं और उनको ईमेल या कॉल के थ्रू आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। Now, while choosing the university and the course of your interest, don't forget to look out for the scholarship, because there are so many courses in the universities. When you are choosing them, you have the option available to get the scholarship. Now, the second step is fulfilling and meeting the requirements. Now, obviously, every university, for every course, they have a different requirements. For example, कुछ universities IELTS required करती हैं, कुछ universities IELTS required नहीं करती। कुछ universities अगर करती हैं तो उनके बैंड रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। आपकी कोर्स, आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसकी CGPA डिफरेंट रिक्वायर्ड होती है। So obviously every university and every course they have a different requirement, so look out for that and meet those requirements. Now, along with that, also learn a little bit of German so that it would be helpful for you once you arrive in Germany, so that आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ कर सकेंगे. Now, once you are done with fulfilling and meeting the requirements, the next procedure is start applying. How to start applying? कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका एप्लीकेशन प्रोसीजर उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू ही प्रोसेस होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस यूनी असिस्ट एक वेबसाइट है उसके थ्रू प्रोसेस होता है। यूनी असिस्ट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पोस्टेड है, सो यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक ऑन दैट। नाउ द आइडियल टाइम फॉर processing your application is at least 6 weeks before the application deadline, so that अगर यूनिवर्सिटीज़ को कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट या इंफॉर्मेशन required हो, so you have the time to provide that information and they have the time to ask for that information from you. Or let's say in case you have to make any amendment in your application, so you will still have some time to make amendments in your application. Now when you get the response is like at least 1 or 2 months after the deadline has passed. So you will either get an acceptance letter or the refusal letter from the university. Now, what are the documents required? That would also be mentioned on either the official website of the university, or if you are applying through UniAssist, तो वो UniAssist पर ही आपको वो information provide की जाएगी. Now the next step is sort out your finances. As you already know, there is a requirement of opening a block account when you are coming to Germany for your student visa. So the amount is 10,236 euros, which you have to block in your German bank account. जो 10,236 यूरोज़ का अमाउंट है वो आप मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं 853 यूरोज़ अ मंथ, और यही जर्मनी में स्टूडेंट का एक एवरेज एक्सपेंडिचर है. बट इट कैन वेरी, it depends upon your living style, your habits. ये अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है. एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आप जर्मनी आ रहे हों तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने साथ रख के लाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको राइट अवे आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो जाता. उसके लिए कुछ प्रोसीजर, प्रोसेसेस एंड फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं. एंड वंस दैट इज़ डन, देन यू आर एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम योर block account in Germany. Now, once you are done with that, the next step is applying for German student visa.
Now, what are the documents required for that, and what are the requirements? What is the criteria for that? And that is also mentioned on the official website, और उस website का link भी इस video की description में paste है. Now, after that, the next step is accommodation. जर्मनी आने के बाद तमाम एक्सपेंडिचर्स में से सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन का. So it is recommended that you apply for the accommodation right after you get your admission from the university, so that once you come to Germany आपको कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े. उसके लिए ये होता है कि जो अकोमोडेशन जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं दे आर फेयरली चीप, बहुत ही चीप होती हैं एज़ कंपेरिजन टू अदर अकोमोडेशन आर प्रोवाइडेड. और उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो कि या तो बहुत ही सस्ती होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर फ्री, लाइक इंटरनेट, वाईफाई एंड द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन के लिए ही अप्लाई करें. और उसका बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए आप अपनी अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई कर दें. और वो आगे भी आपको काफ़ी नेक्स्ट स्टेप्स में भी काम आएगी, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ बुकिंग योर टिकट्स. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपने कोर्स शुरू होने से एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले जर्मनी अराइव कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसेस होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं. और वो बेहतर यही है कि आप पहले आके अपने स्टडी कोर्स शुरू होने से पहले उनको कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो. अच्छा, उन प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपकी इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी. जब आप यहाँ पर आएँगे तो आप अपनी इनरोलमेंट करवाएंगे. उसके बाद आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन भी होती है. उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग होती है और वीज़ा एक्सटेंशन भी होती है. यू कुड ऑल्सो स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स. जैसा कि अकोमोडेशन जो अगर आप पहले करवा लेंगे तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन में भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अकोमोडेशन की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सिटी रजिस्ट्रेशन. और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप ऑलरेडी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और आपको अकोमोडेशन मिल चुकी होगी. बैंक अकाउंट आप पहले आ जाएंगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए पहले अप्लाई कर दें, और विद इन लिटिल बिट ऑफ टाइम आपको वो अकाउंट ओपन हो जाए. वीज़ा एक्सटेंशन, क्योंकि जब आप जॉब फाइंड करेंगे तो वो आपके वीज़ा एक्सटेंशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि पाकिस्तान से आप जो वीज़ा लेके आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस उस वीज़ा के ऊपर आपको जॉब अलाउ नहीं होती. तो आप यहाँ पे पहले आके पहले वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका वीज़ा एक्सटेंड जल्द से जल्द हो जाए और उसके बाद आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएं. गाइस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे जो कि आगे आपको हेल्पफुल साबित होंगी इफ़ यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर स्टडी, your education, either for masters or bachelors in Germany. So please don't forget to subscribe this channel, so that once any informative video is posted you would immediately be informed about that. Guys, ये थी आज की कहानी, and keep watching these videos. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please click the like button, share, comment for your feedbacks. Until the next video, signing off. Thank you so very much. Bye.